set. So I did plan from Mirisa to go to Veligama, which is like 20 minutes away from here. And in Veligama there are like a lot of famous cafes and I don't want to miss that. I think it's very early. We are going to get little sun also. We are going to go to Veligama beach also, get a little wet and have our own time, and then maybe come back to Mirisa and do shopping, or we'll decide rest of the day according to the cafe hopping that we do. So welcome back to my channel, guys. Let's go, let's start our day. I'm so excited. As soon as we started our journey, this was the view on the way. Matlab, it was so crazy, man. Also, how can you miss a king coconut when you are in Sri Lanka? It's only 1 minute away, right? Can't wait to show you guys the place. This is our first destination. It's the coolest cafe in Ahangama, which is Kai Cafe. This view is to die for, man. It has 2 floors. Proper जो menu जो start होता है ना, it is not there. There are some, limited items. 3 बजे तक. It's 1:30 right now. Manage whatever we get here. Called for some coconut sour. Mom is having. She's having mango coconut milkshake. For some jackfruit burger right now, because in vegetarian option that is the only thing which is available. We were planning to go to the cliff which is in Veligama, but I just saw कि वो 4 बजे open होने वाला है, and because of that only I thought अभी we are ready and we need to go somewhere. This was the famous place in Ahangama, तो मैंने सोचा था ये पूरा करेंगे. इसके बाद मैं ये भी सोच रही हूँ कि द क्लिफ भी जाके आएंगे. ऐसे जस्ट ग्लांस हम करके आ सकते हैं 4 बजे, और वहाँ पे अगर अच्छा लगा तो बैठ जाएंगे, वरना हम सनसेट देखेंगे मिरीसा में. सो दैट वे वी कैन एटलीस्ट कंप्लीट 3 cafes. शी डिड नॉट इवन cheers. Cheers. Old Arak. Okay. So this is Old Arak, which is a Sri Lankan alcohol. What they have mixed in this. Really superb. It's yum. मतलब बहुत ज़्यादा yummy लग रहा है ये. So अगर आप Kai Cafe आ रहे हो तो I think ये try करो. Jackfruit burger, which I have never ever tried in my life. We are leaving from Kai. Here's the change. मैंने यहाँ पे भरे हैं 6,380 rupees. Indian money 1,800. 3 ही बजे, लेकिन लाइट एकदम अच्छी हल्की हो गई. It has an easy access to the beach as well, and we are getting down. She'll be down. She struggles a bit, but she can do it. हाँ, उसको एकदम ही impossible है. I don't force her, but she knew that she can manage this. High tide इतनी है क्योंकि कल full moon day है. इतने सारे क्यूट डॉग्स देखे यार हमने. नाउ वी आर जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल ऑन आहंगामा बीच. इसके बाद वी आर जस्ट ऑफ टू द क्लिफ नाउ. At 4 also cliff was not open, so we decided let's head to the Mirisa beach itself. And what I noticed is Mirisa beach is much happening than other beaches. I wanted to go to Lava right now, but they are just prepping for the evening, so they said we'll have to wait for some time. Now I'm making mom sit here for some time. I'm going to the Parrot Rock. Our shoes are gone. So basically I wanted to walk a little bit, only because I wanted to reach there. So this Parrot Rock is a small rocky island located right on the Mirisa, where you get to see a beautiful panoramic view. Look at the stairs. These are actually scary. Just because I'm holding like one tripod with a phone and there's another phone in my hand. Really make it there. It's just that I don't have any company. So this is the actual view from the top and it is so beautiful. And I'm back. The experience was superb. It was fun. The orange lights where you can see, that's the Lava Cafe, which is famous at Mirisa beach. But we'll have to sit here for a while because mom has called for some food. So we'll have that and head towards Lava Cafe. Looks like the rains have other plans for us. We cannot visit the Lava Cafe because it started raining. Let's see where she'll take us. Right or left over? Left. यहाँ से ना हमारा होटल सिर्फ 4 मिनट दूर है. तो अभी तुम गाइड करो, हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या कहाँ जाना है. Okay, you are wrong. She made it, guys. Hooray! 2 days in Mirisa were magical. Full of rains, no doubt in that. मम्मी को गुड नाइट बोलने वाली हूँ. I'm going for shower.
and I'm going to go to a secret jungle party and I don't know कि return आने के लिए cab मिलेगा कि नहीं. Ready and go out to party in Mirisa. रात के 11:30 बज रहे. I just stepped out. मम्मी सो रही है. We are going to doctor's house. Looks like there's a festival which is going on here. It's called Sola Festival. The place also looks quite big. They have some gambling games and lots of things are going on here. I paid 1500 LKR as a per person entry over here. Doctor's house तो 1:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन right next to Doctor's house there was one more place which was open till 3. They took the same entry charges here. Spot number 2. It's an Irish song. I'm not a singer. Sing! And the boys are drinking out. Good morning guys, it's a new and fresh day, day 3 in Mirisa. बस हम अभी चेकआउट करेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड एला. बट फर्स्ट यहाँ पे किसी ने दस्तक दी है, द क्यूट पिकॉक. मज़ा आ गया यार, एकदम मूड फ्रेश हो गया था पिकॉक को देख के सुबह सुबह. वो भी क्रेजी लग रहा है यार, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. ये रोटी बहुत अच्छी लगी यार, क्योंकि ये जो कोकोनट संभाल है ना, रेड वाला, बहुत स्पाइसी है. काश जैसे हमारे इधर भी होता. घर से निकले, छोटे छोटे ऐसे ब्रेकफास्ट पॉइंट्स, कहीं भी जाके बैठो, मस्त खाओ पियो. ऐसा ब्रेकफास्ट करने को मज़ा भी आता है यार. The total distance from Mirisa to Ella is like 1.5 hours and it's 97 kilometers. Full naturally. हम बस अभी निकले थे. ऑन द वे हमें काफ़ी सारे स्टॉल्स दिखे जहाँ पे हनी बेच रहे हैं ये लोग, नेचुरल एंड विद शुगर वाला. हाफ बॉटल हनी विदाउट शुगर इज़ फॉर 900 एंड फुल बॉटल इज़ फॉर 1000 विद शुगर. एंड दे सेल ऑल्सो हनी प्लस कर्ड इन द कुल्लड़ वाला पॉट एंड दिस इज़ रियली वेरी टेस्टी. अब हनी एंड कर्ड ऐसा अगर खाया तो कुछ मीठा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब यहाँ से होटल इज़ ओनली 20 मिनट्स फार. इसके पहले लेकिन यहाँ पे रावना वाटरफॉल्स आता है. इसका नज़ारा तो देखने लायक है. सो आई जस्ट गॉट डाउन टू शो यू गाइस द व्यू. दैट्स रावना वाटरफॉल बिहाइंड मी. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो सरेल. From Mirisa to Ella for the taxi I paid around 22,000. This taxi इधर आगे खड़ी है. So now can't wait to just check in the hotel, go get freshen up and go to Nine Arch. I'm just waiting to see that nazara. We reached Ella. रूम दिखा दिया मैंने आप लोगों को. छोटू सा रूम है, प्यारा सा रूम है. पर डे आई थिंक INR में अगर देखेंगे तो 2500 के आसपास कुछ पड़ा है मेरे को ये. और यहाँ के LKR में आप अगर कंपेयर करो तो 8000 के आसपास होता है. लाइक फॉर अ डे और 2 इट्स नॉट बैड. तो आज मैं देखूंगी कि मैं कितनी चीज़ें कवर अप कर सकती हूँ यहाँ पे. अगर सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है घूम फिर के, देन आई माइट like leave Ella tomorrow only. Otherwise I'll stay for one more day. दिख गया मुझे small supermarket. Oh, places everywhere guys. There's a small place also where people can sit and eat. Looks very huge and nice. Let me go and check the menu first. Hello. चिल कैफे. मैंने पंपकिन सूप मंगाया है, डिटॉक्सिफाइड जूस मंगाया है. एंड आई हैव कॉल्ड फॉर लोकल श्रीलंकन फूड ऑल्सो. देखो, अब चिल कैफे के बाजू में जो सुपरमार्केट था उसके बाहर इतना बड़ा ये नटेला का स्टोर था. यहाँ पे दे गिव रोटी एंड स्टफ लाइक दैट, सो आई हैड टू ट्राई इट बट इट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग.
Now we are off to our first destination in Ella, which is Nine Arch Bridge. So good. रहना वहाँ से भी आप just walk and come till here. Just hardly 5 minutes walking. वहाँ पे हमने टुक टुक छोड़ी. यहाँ पे ना टुक टुक का जो प्राइसिंग है ना वो कभी कभार फिक्स रखते हैं ये लोग. सो आई फिक्स द टुक टुक क्योंकि जाने के लिए वापस है नहीं कुछ भी. सो दे जस्ट वेट हियर एंड यहाँ पे मैंने उसको दिए 2500 जहाँ पे वो बोल रहा था कि 3500 लेगा या मिनिमम 3 लेगा. तो मैंने 2.5 में उसको डन किया. हार्डली 12 मिनट्स का रास्ता होगा ये. यहाँ से ना लोग ऐसा ट्रैकिंग करते हुए ना नीचे जा रहे हैं वो, ताकि वो लोग ना उस तरफ जाके ऐसा पूरा इस व्यू का नीचे से फोटो ले पाए. जितने लोग थे ना इधर सब चले गए क्योंकि बारिश क्यों आ रही है यार. लुक एट दिस. नाइन आर्च ब्रिज करते करते शाम तो हो ही गई थी और बारिश भी चल रही थी. तो हमने सोचा अब होटल की तरफ ही चलते जो हमने एला के टाउन में ही लिया हुआ है. एंड वी जस्ट डिड सम बेसिक लोकल शॉपिंग. फॉरेनर्स ऑटो चला रहे हैं बॉस. ये तो गजब ही हो गया फॉरेनर्स का ऑटो चलाना. नाउ बस वी आर हंटिंग फॉर अ गुड प्लेस. यहाँ पे हम कहीं सोच रहे आज पिज्ज़ा खा लेंगे क्योंकि हमें सुबह जल्दी भी उठना है और एक और अच्छे स्पॉट पे जाना है. बस अभी यहाँ पे अच्छा ऑथेंटिक पिज़्ज़ा खाने के बाद हम होटल की तरफ आ चुके हैं. दिस इज़ द सिटी ग्रैंड होटल. ये मुझे बस आप लोगों को बाहर से भी दिखाना था. मॉर्निंग गाइस. यार एला में इतनी ठंड है. पहले जब हमने इस रूम में एंटर किया कल और मम्मी पूछी एसी नहीं है, इधर एसी नहीं है. इतनी ठंड लग रही है, बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा है यार. तो चेकआउट भी करना है, ब्रेकफास्ट करना है, पैकिंग कर लेंगे, रिसेप्शन पे बैग रख के देन विल गो to see the Adams and the Buddhist temple. उसके बाद बस निकल जाएंगे नीचे से बैग्स वैग्स लेके. एला से कैंडी is somewhere around 3.5 hours. No problem. So we got a tuk-tuk going for 800 LKR. And we are here. Welcome to Flying Ravana Adventure Park, guys. So before we go to the pool club, इसके पहले हम ऊपर की तरफ चलेंगे ट्रैकिंग के लिए. And as we reach at the top, there are lots of adventures activities that we can do. चप्पल पहन के आई हूँ, but मैं ये सब कर चुकी हूँ तो मेरे को टेंशन नहीं है. It's only 800 meters, which is not too much. जो है यहाँ पे उन लोगों ने रेस्टोरेंट और पूल साइड बनाया हुआ है. हल्का सा ऊपर क्लाइम करते ही पूल का पूरा ओवरव्यू हमें दिख रहा है और कितना प्यारा लग रहा है. रियल ट्रैकिंग तो यहाँ से ऊपर की तरफ आने से शुरू हो गई है. मॉम नीचे ही रेस्ट करने वाले हैं तो मैं तुरंत अभी फटाफट ऊपर जाके होके आऊँगी. सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों को बताऊँगी कैसे क्या है और क्या नहीं है यहाँ पे चीज़ें. और लिटिल एडम्स का टॉप वाला व्यू तो देखना बनता भी है. थोड़ी सी तो हाफ लगेगी क्योंकि गर्मी भी है. अच्छा यार मैंने खुले खुले कपड़े पहने, अच्छी खासी सनस्क्रीन लगा लिया. जो आपने स्टार्टिंग में आते वक्त बोर्ड देखा था वहाँ पे मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिखाई. स्काई वॉक स्पीक गाइड किया हुआ है वो स्काई वॉक के लिए अगर आपको करना है तो. मतलब यू कैन सी ऐसे चढ़ के ना वहाँ पे उस तरफ आपको एक और स्टेयरकेस दिखेगा. तो ऐसे कर करके यू हैव टू गो टूवर्ड्स दैट साइड. चलो थोड़ा सा तो जाती हूँ. टिल द टाइम बारिश आती नहीं है. स्काई वॉक आई विल शो यू. तीन एक्टिविटीज जो मैंने देखी वो है जिप लाइन, स्काई वॉक एंड डर्ट बाइक एज वेल. नाउ इट्स टाइम टू सी द टॉप व्यू ऑफ लिटिल एडम्स विच इज सो ब्यूटिफुल मैन. दिस इज वेरी क्रेजी.
आई एम ऑब्वियसली नॉट डूइंग एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ क्योंकि मॉम भी नीचे वेट कर रही है, बहुत ज़्यादा धूप भी है और बारिश आने के तो फुल चांसेस है। बारिश का नाम लेते ही हो गई शुरू। नाउ इट्स टाइम टू एंटर द पूल क्लब। यहाँ पे 1000 रुपीज पर पर्सन चार्ज था जो कि अंदर फुल कवर है। गाइज लिटिल एडम्स करते करते आधा दिन तो पूरा लगने ही वाला है क्योंकि बहुत सुंदर व्यू है एंड यू वुड वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम हियर, नो डाउट इन दैट। अब यहाँ पे बस फटाफट लंच करके हम निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लोकल श्रीलंकन फूड और कुछ ड्रिंक्स मंगा लिया। हम निकल चुके हैं कैंडी के लिए, बट ऑन द वे ये नज़ारा देख के तो आई वॉज रियली शॉक। दो कोबरा नाग पता नहीं क्या लेके बैठे ये अंकल। ये नज़ारा तो भाई देखने लायक था यहाँ पे। दिस इज नुआरेली। अभी बस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 घंटे और लगने वाले कैंडी पहुँचने के लिए। नुआरेली इज़ अ वेरी गुड लुकिंग इंग्लिश टाउन। यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं डेफिनेटली एक और दिन यहाँ पे रुक जाती, बट सिंस मैंने कैंडी की बुकिंग करके रख दी है तो आई हैव टू रीच कैंडी टुडे। एंड दिस इज दलकिरी लेक इन नुआरेली। ये व्लॉग को तो मैं यही एंड करूंगी, बट इसके पहले आप लास्ट तक पूरी समरी देखना, मैंने ट्रिप की बताई हुई है। एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइज एन ओवरव्यू ऑफ कैंडी का होटल। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। स्टे ट्यून्ड फॉर वन लास्ट व्लॉग ऑफ श्रीलंका जहाँ पे मैंने सिटी एंड कैंडी का पूरा टूर किया। सो इन मिरीसा आई स्टेड 2 days. Then I went to Ella. I stayed only a day. I wanted to stay one more day, but I had, packed schedule. The way I planned the whole trip, it was only for 8 days. So if you're coming to Sri Lanka, I would suggest you to always go from city to Mirisa and then to Ella. You can come from Ella to Kandy, but Kandy is a very small town. You can spend a day, and if you really want to skip, you can even skip, because other than coming to Kandy, I would suggest you guys to, from Ella, you should come to Nuvareli, because Nuvareli was amazing. The Dalkiri Lake and the parkside view was, it was just a Bollywood feeling, and it was beautiful, and it was quite cold. Trust me, go to Nuvareli because it's an amazing place to experience. Colombo has been very amazing to us. Sanjay was great. He's helped us like throughout the time. He half of the time he was a guide also. Thank you for watching this vlog. Koi bhi doubts ho, you can always comment and ask, and please go and check other vlogs as well. Bye for now. Love you guys. Don't forget, like, share and subscribe.